हॅलो. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मॅम. वेळ आहे, अजून 10 मिनिटं आहेत. वेळ आहे, थोडं माझा कॅमेरा कनेक्ट नाही होत आहे, मी ते चेक करते काय ठीक प्रॉब्लेम आहे मॅम, करा करा. आहे. The open access, that means the free resources for teaching and learning purpose, right? Now I am sharing my screen, PPT presentation. So friends, let's start with open access. Okay. See, it is rightly said by Jamie earlier that technology can become the wings that will allow the educational world to fly farther and faster than ever before, if we will allow it. And see, friends, today everybody expect a teacher to be a network teacher. हर एक टीचर को हर एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए. He should be equipped with all the new technologies now, like social bookmarking, then social networking services, then video conferences, wikis, blogs, and whatnot. So the expectations of the people from a teacher are very high nowadays, right? Now, a very important concept for all of us, being teachers, being learners, and being researchers, is gaining momentum nowadays, and that is open access. What is the meaning of open access? Open access means the literature which is available on the web, which is free of cost, which is immediately accessible, which is permanent, which is accessible in full text. It is online. And the very important thing is it is free from copyright also, right? Now, why? Why open access? See, suppose if you are publishing one paper and if you are self-archiving it, so it maximizes the research visibility, the usage, the uptake, and of course, the impact of your research. Okay, so open access is very important. And there are some open access tools which are available on the web, and today I am going to tell you all these resources, and I am also going to cover the institutional and disciplinary repositories and how to put your work in those repositories, right? All this I am going to cover in this particular session. Now, what are actually the advantages of open access repositories? See, there are metadata description available so that it can be easily indexed by Google and you can search it by keywords. Then compliance with international standards. These repositories follow international standards. Then these are indexed by search engines. So the search engine like Google, when it is indexing that particular your publication, so it maximizes its usage, right? Then the fourth one is long-term preservation is there, and use of permanent DOIs and URLs is the one of the feature of open access repositories. See friends, when we go to commercial search engines like Google and when we use www, so we feel information overload because information explosion is there and we get so many things on the web. So everything is not the authentic thing, but some garbage will also be there. Now there are some open source open
open access resources available. But before that, I would just like to tell you about the journey of the libraries. See, this information technology, which is a combination of two major मॅडम हॅलो. मॅडमचा आवाज येत नाही. हो सर, मला वाटलं की मलाच येत नाही आहे की काय. मॅडमच्या नेटवर्ककडनं काही थोडा प्रॉब्लेम असेल. एक मिनटं होल्ड कराल. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके. हॅलो मॅडम, आवाज नाही येत आहे आणि व्हिडिओ पण नाही दिसत आहे. हां हां. वेट करिए फ्रेंड्स, मैडम ने लीव करके फिर से ज्वाइन करेंगे वो. कुछ डिस्कशन होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ लीजिए तब तक 2-3 मिनट में, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी. लँग्वेज सॉरी सर, आवाज मिक्स लँग्वेज यूज करा म्हणून. मिक्स लैंग्वेज. सेमिनार के टॉपिक्स भेज दिए आप लोगों ने, पीपीटीज. हेलो मैम. हॅलो जी मैम. येस. एक मिनट. Yes, ma'am. शेअरची लिंक कुठून डिस्कनेक्ट झालं होतं? मॅडम ते टेक्नॉलॉजी इज अ टाइप कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स वाले तुम्ही सांगत होते, ती वाली स्लाइड होती. अच्छा. Journey of library, open access. सेवंथ स्लाइड. Okay, right? Yes ma'am. So friends, because of this ICT, we have now internet-based or WW-based libraries that are virtual libraries. And there is a proverb that is, give a man a fish, feed him for a day, teach a man to fish, he feeds himself for lifetime. देखिए ये जो पर्टिकुलर चीजें है ये ओपन. यस. हेलो प्रीति मैम. मैम आपका पॉसिबल वीडियो बंद रखिए, स्लाइड शुरू रखिए, तो फिर वो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम वो नहीं आएगा. आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है ना, तो ओके ओके मॅडम, तुम्ही इसका व्हिडिओ problem ऑफ नाही आहे. ठेवला तरी चालेल, कारण की ऑडिओ ब्रेक होतो आहे.
No, okay, madam. ओके अगर ये ओपन एक्सेस रिसोर्सेज के बारे में अगर आपको जानकारी रही तो आप आपकी इंफॉर्मेशन नीड्स जो है वो खुद ही पूरी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इंडियाज न्यू साइंस पॉलिसी जिसे कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, it is expected to be out before this year 2020, and it wants to make scholarly knowledge openly accessible to all. Okay. See, an expert group consulting the government on the new policy has recommended a one nation, one subscription formula for India. See here, one nation, one subscription formula for India. This means the government will aim to negotiate with leading publishers of science journals a countrywide open access policy. Under this scheme, a single centrally negotiated payment will be made to publishers of scholarly journals in return for access to all published literature by every individual living in India. Okay, so there will be a centralized system of negotiation. Okay, this new proposal is expected to replace the current norm where individual academic institutes or consortia of institutes subscribe to journals separately, thereby replicating the cost according to sources in the government. Now, there is one more significant recommendation of this policy, and it is that the authors of scholarly literature will be permitted to pay article processing charges. देखिए बहुत सारे रेप्यूटेड पब्लिशर्स जो होते हैं उनके कुछ जर्नल्स होते हैं तो वो आपका पेपर पब्लिश करने के लिए एपीसी क्लेम करते हैं, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस करते हैं, तो वो जो रिसर्चर को अपने पॉकेट से देने पड़ते हैं। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट वो रिसर्चर कर रहा है तो उसके फंड में से वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस दे सकता है। ओके, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बर्डन है एपीसी का वो रिसर्चर पर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस जो है ये इस पॉलिसी में दिए हैं। ओके, और ये पॉलिसी का मेन जो एम है वो है कि सेंट्रल पेमेंट सिस्टम फॉर एपीसीज फॉर ऑल रेप्यूटेड एपीसी बेस्ड जर्नल्स के लिए बनाया जाए, और यहाँ पे प्रीडेटरी पब्लिशर्स जो है वो स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड किए जाए, राइट। One more thing is there in the run up to these recommendations during a public consultation in June 2020. India's principal scientific advisor Krishna Swami Vijay Raghavan proposed open access model for the country. It is publicly funded research must be accessible to the public. See friends, जो सैम पिट्रोडा जी थे चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने मतलब एनकेसी ने एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिए थे रिगार्डिंग दिस ओपन एक्सेस कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है वो ओपन एक्सेस में पब्लिश किया जाए। और इसी कारण जो इंडिया के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जैसे आईसीएआर, सीएसआईआर है, डीआरडीओ है, आईसीएमआर है, आईसीएआर है, तो वो जो भी जर्नल्स पब्लिश करते हैं उनके इंस्टीट्यूट के द्वारा वो ओपन एक्सेस में एक्सेसिबल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज को हमको ध्यान रखना है। और हम जब स्कोपस का डाटा देखते हैं तो उसमें इंडिया इज इन द 5th पोजीशन in terms of total number of publication and 6th in terms of OA publications in the world after the United States, China, United Kingdom, Germany and Japan. Now you can see this research output आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए India and the world year wise you can see these statistics over here. These are the total publications and these are the publications from India. And here open access publications year wise the world and India, right? And India's contribution to global open access publications is 4% and annual growth rate of open access publications in India is 12.5%, right? Now we are going ahead with this open access concept. As I have already
told you that open access is the literature available on the web, which can be accessible in full text, which is free from charge, and the last one is it is copyright free. Okay, this open access literature is scattered over the net in various formats like open access journals, then open access archives, then institutional repositories, ETD repositories, and OER and OCW. See, this OER stands for Open Educational Resources and OCW stands for Open Courseware. Now we will see one by one. As far as open access journals are concerned, जैसे these are made freely accessible to you, but there are some publication charges also. बट जो कॉस्ट होता है वो कोई इंस्टीट्यूट बेयर करती है या गवर्नमेंट बेयर करती है, लेकिन आप तक वो फ्रीली पहुंचता है. ओके, so 4 important sources to get access to these open access journals are there. The first one is Directory of Open Access Journals. The second one is Free Medical Journals. Third one is Highwire Press, and fourth one is OpenJGate. We will see one by one. See, this is the homepage of Directory of Open Access Journals, and you can search and browse through the journals as well as articles. Okay, and advanced search option is also there. Now, the recent coverage of DOAJ, that is, it is indexing 15,054 journals, and then 12,088 searchable at article level. These journals are from 133 countries, and these many articles are accessible. Okay, then we will see the searching. See, these many journals are there, these are articles, and this is the list of total articles over here. These are the searching options given subject wise, then publisher wise, etc. See here, when you go for subject searches, from here you can see these many subjects. There are a number of subjects available, and these are actually articles available in that particular subject. Now, as far as publishers are concerned, you can see Elsevier, BMC, all these Taylor and Francis, Willey. See, all these publishers are reputed publishers, and they have made their journals open access. Okay. Now you can see I have searched for COVID-19. So for COVID-19, 8309 results were there. And this is one of the article, and this is the full text. This article runs in 10 pages. You can see over here. Now, second source for journals is Highwire, and it gives free access to developing economies. These many journals are there. Okay, so this is one of the journal, Advances in Nutrition. You can see over here, and its impact factor is 7.265. And see, this is the table of content, and this is full text article retrieved. Then the third one is Free Medical Journals. This is also a very good website for science people, and you can see these are the subjects, and see the journals with impact factor greater than 2. These are the journals. Then impact factor greater than 5. These are the journals. You can see. And there is one more, that is OpenJGate. See, JGate is the consortia which is subscription based, and you can see over here, it is OpenJGate means this provides open access journals. See, this is actually the search page, and these many journals are included in this OpenJGate. You can just look at the figures. And I have done the search with the keyword business. So 49,117 articles were retrieved. Suppose I wanted to know to go through this article, just click on it, click for the full text link, and article is there, Smart Business, the customer is not always right. Then you can make
advanced searches also, just like stock prices and economic growth, and it retrieved 2 matches, right? And this slide is very important in my presentation, friends. See, this is the age of digital world, right? And e-journals are equally becoming very important. And see here, the message is given. The paper was accepted and published on the same day. ये सिर्फ ई वर्ल्ड में ही हो सकता है, प्रिंट वर्ल्ड में दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस ओपन एक्सेस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. See, actually, this is a magazine, Dilip magazine. I tried to send my paper to e-journals in 2009, and it got published. See, here is, and my experience is very good about this particular journal, because their policy is they take 3 weeks. 3 हफ्ते में वो आपको बता देते हैं कि आपका पेपर एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या इट नीड्स सम रिवीजन. ओके, एकदम परफेक्ट विद इन 3 weeks. Okay, this is my personal experience. See, actually, this is a journal published by Elsevier, the International Information and Library Review. But this is subscription based journal, but my paper published in this particular journal was accessible through Science Direct, and after that I received one opportunity. आप यहाँ पे देख सकते हो, यही वो पेपर था, responding to information needs of the citizens through e-government portals and online services in India. तो मुझे यूनिवर्सिटी एट अल्बानी से ये मेल आया था, यू कैन सी ओवर हियर, और वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइबर बिहेवियर IGI ग्लोबल के द्वारा पब्लिश करने वाले थे. तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिक ये दिया था, स्पेसिफिकेशन के आपका ये पेपर हमने पढ़े, वी वांट सच केस स्टडी ऑफ इंडिया टू बी पब्लिश्ड इन आवर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइबर बिहेवियर. मैंने उनको 35 पेजेस का इंडिया का केस स्टडी बना के दिया था, एंड इट वाज पब्लिश्ड. सो व्हेन यू गो ऑनलाइन, आप आपका प्रेजेंस ऑनलाइन बनाते हो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती है, राइट? जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था, तो उसके बाद में ये सब जर्नल्स जैसे करंट साइंस है, साधना, प्रमाणा, ये these are published by Indian Academy of Sciences. These are all available now under open access. Then INSA, all the journals. Then you can see Made in, then Medno Publishers, around 122 journals, Medno Publications publishes. Okay, so these are some of the journals from India which are under open access. Now I am going to talk about some digital library projects which are very important projects to know. The very first one is 1 million book project. आप देख सकते हो, इसके 22 स्कैनिंग सेंटर्स जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 4 मेगा सेंटर्स. 18 सेंटर्स आर रनिंग इन चाइना. ओके, और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है 1 मिलियन बुक्स को डिजिटाइज करने का, तो उन्होंने उसके लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, द यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, एंड दिस इज सर्चेबल एंड ब्राउजेबल. अभी आप इसको, इसमें एडवांस सर्चेस भी कर सकते हो, और आप देखेंगे अभी दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स जिसमें जो बुक्स थी उसको इन्होंने डिजिटाइज किया है. एंड इफ यू आर सर्चिंग थ्रू कीवर्ड, तो आपको इस प्रकार से वो कीवर्ड से रिलेटेड बुक्स यहाँ पे आएगी. तो उसमें से किसी भी एक बुक को आपने क्लिक किया तो उसकी बुक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, और आपको यहाँ पे टिप व्यूअर दिया हुआ है. मतलब इन्होंने वो बुक्स के पेजेस को स्कैन करके टिप इमेजेस बनाई है. तो आपके सिस्टम में टिप रीडर होना चाहिए, तो ही ये किताब खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलता है वो किताब, राइट? उसके बाद में अगर आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बता दूं रफली, आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी किताबों का स्कैन हो चुका है अंडर दिस प्रोजेक्ट. यू कैन सी द नंबर. एग्रीकल्चर more than 13,000. Then this is biology more than 16,000. Chemistry 27,000.
then economics 32,000, education more than 1,61,000 books have been scanned. ओके अभी यहाँ पे और भी है, जैसे हिस्ट्री दिस मेनी बुक्स, लॉ, ओके। अभी और आएंगे कुछ, जूलॉजी 2001, देन यू कैन सी साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स। तो इतनी सारी किताबों का स्कैनिंग उनका हो चुका है एंड दीज आर मेड एक्सेसिबल थ्रू यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए इसमें जैसे 1700 साल के बाद में अभी तक, मतलब 2020 तक की भी बुक्स आपको मिलेंगी, राइट। अभी एक चीज है कि इसमें कभी कभी क्या होता है, जो पुरानी बुक्स होती है वो फ्रेजाइल हो जाता है पेज, और कुछ पेजेस उसमें से मिस हो जाते हैं। तो भी उन्होंने जितनी बुक मिली उतनों का स्कैनिंग करके ये वेबसाइट में एक्सेसिबल किया है, so that the future generation will get all this ancient literature, right? अभी हम देखते हैं एक और मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, दैट इज उसका जो एम है, दैट इज वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना बड़ा नंबर है, मोर देन 4 crores आई थिंक रिसोर्सेस आर देयर। सी यहाँ पे स्कॉलरली पब्लिकेशंस है, डेटा सेट्स है, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस है, जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस भी है। तो ये सब अलग अलग तरह का लिटरेचर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का लिटरेचर यहाँ पे मिलेगा। आपको इसके लिए सबसे पहले लॉगिन होना पड़ता है, दैट इज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो आप आपको पासवर्ड आ जाता है तो आप लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद में आप उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए कोविड-19 का उन्होंने एक अभी अलग से ये दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है होम पेज पे ही, तो उसमें से आपको कोविड-19 के बारे में अगर लेटेस्ट जानकारी लेनी है तो यू कैन गो फॉर दैट। जैसे मुझे जॉन हॉपकिंस ने क्या किया है तो वो देखना है, तो जॉन हॉपकिंस जो है उसका डैशबोर्ड वो दे रहा है कोविड-19 का पूरा स्टैटिस्टिक्स, राइट। फिर इस प्रकार के वीडियोस है, डायरेक्ट मैसेज, डोनेट प्लाज्मा, ओके। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी करंट चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी, जैसे इनोवेशन टू रिस्पॉन्ड टू कोविड-19, देन यू कैन सी इसमें जो सर्च होते हैं वो 3 लेवल पे आप कर सकते हो सब्जेक्ट की डेप्थ में। जैसे मैंने यहाँ पे सोशल साइंसेस को क्लिक किया, तो यू कैन सी दीज मेनी आइटम्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। हम सेकेंड लेवल पे गए अंडर सोशल साइंसेस लॉ, ठीक है, तो इतने सारे आइटम्स आपको मिलेंगे। और हम थर्ड लेवल पे गए और मैंने क्रिमिनल लॉ को क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे आइटम्स क्रिमिनल लॉ के आपको मिलेंगे, राइट। अभी एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड February 2007 है, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए इसके बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ गए। और ये देखिए दिस इज अ क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हो LLB डिग्री 2 ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है क्रिमिनल प्रोसीजर का। और ये जो है क्रिमिनल लॉ, उसके ऊपर आर्टिकल्स 525 है, बुक्स इतने हैं, करस्पॉन्डेंस इतने, जर्नल 3 है, लॉ एक्ट इतने सारे हैं, लॉ जजमेंट्स इतने सारे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन पेपर्स 11 है। तो इस प्रकार से अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद में एक और डिजिटल लाइब्रेरी का हम इसमें भी आपको बहुत सारे ओपन एक्सेस बुक्स मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिमिनल एंड लॉ करके बुलियन सर्च किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 किताबें मुझे मिली है, रिसीव हुई है। यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बुक और आप उसको पढ़ सकते हो। देखिए ये बुक 300 पेजेस का बुक है, राइट, एंड इट इज फ्रीली एक्सेसिबल है। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो फॉर ऑफलाइन यूज, राइट।
There is one more project of Government of India, that is Digital Sanskritik Sampada Pustakalay. It is Cultural Heritage Digital Library. यहाँ पे जो हिंदी स्पोकन स्टेट्स है इंडिया के, तो उनका पारंपरिक साहित्य, मौखिक महाकाव्य, लोक साहित्य, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिलती है. यू कैन सी दिस इज सिंहासन बत्तीसी, और आप यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो. देन राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में आपको पता करना है, एक परिचय, फिर ये पूरे राजस्थान के रिलेटेड सब लोक साहित्य वगैरह उन्होंने दिया है. इवन ऑडियो वीडियोज आर आल्सो अवेलेबल. राजस्थानी लोक संस्कृति 74 songs are there, and you can see some digital ये जो है इमेजेस, वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी. देखिए, लोक संस्कृति, राजस्थानी लोक भजन, ओके, वीडियो सीरीज. एंड पारंपरिक साहित्य में जैसे बुद्ध की कहानी है, सिंहासन बत्तीसी है, पंचतंत्र, हितोपदेश, वो भी आपको यहाँ से एक्सेसिबल है. इफ यू क्लिक ऑन बुद्ध की कहानियां, यू विल गेट सो मेनी बुद्ध की कहानियां, राइट. देन देर इज वन मोर, मुक्तबोधा इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट्स डिजिटल लाइब्रेरी. यहाँ पे भी आपको एक स्पेसिफिक आध्यात्मिक रिलेटेड साहित्य मिलेगा. इसमें अगर आप लाइब्रेरी को एंटर करते हो तो यू कैन सी दिस इज द कैटलॉग गिवन, एंड इफ यू सर्च इट बाय like author's name, that is or title name, then you can get access to such books. यहाँ पे आप देख सकते हो. See, the book is open now. It is of 268 pages. आप यहाँ से देख सकते हो. ओके, इस प्रकार से. ओके, और यहाँ पे मुक्तबोधा में यू कैन ऑल्सो सी द मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, राइट. और ये जो है गोकर्णा वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, तो इसको यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है. एंड यू कैन सी 3 फैमिलीज, जोगलेकर फैमिली, कोडलेकेरे फैमिली एंड सांबा दीक्षिता फैमिली का जो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है वो एक्सेसिबल है यहाँ से. यू कैन सी दिस इज जोगलेकर कलेक्शन. क्लिक ऑन एनी वन ऑफ इट एंड सी हियर द मैन्युस्क्रिप्ट इज ओपन फॉर यू. Okay, this is Muktabodha. And friends, you must know one more thing regarding this manuscript, क्योंकि हमारे भारत का एक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट चल रहा है, और उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स लोकेट किए थ्रू आउट इंडिया. जैसे कुछ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है. उसके बाद में जो मठ होते हैं, तो मठों में, मंदिरों में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं. पर्सनल कलेक्शन में लोगों के फैमिली का भी लाइब्रेरी होता है, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं. तो उन्होंने बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है उसका तैयार किया है, दैट इज भारतीय कृति संपदा, एंड इट इज सर्चेबल. देखिए, इस प्रकार से आप उसको सर्च कर सकते हो. अभी ये अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध है, एंड दिस डेटाबेस इज सर्चेबल. जैसे मैंने देखा एक मैन्युस्क्रिप्ट, और ये कहाँ पर है, तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है. ये उसका पूरा बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा. फ्रेंड्स, देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट ऑफ MHRD, दैट इज विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी. जो मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बच्चों को जो रेफरेंस बुक्स लगती है अदर देन टेक्स्ट बुक्स, तो उसको डिजिटाइज करने का काम किया है, एंड दीज आर मेड एक्सेसिबल थ्रू दिस डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी. यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है आपको, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, एंड लॉगिन इज फ्री, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, राइट. अभी मैंने एनवायरनमेंट शब्द दिया इसमें सर्च में, तो मुझे ये बुक आई. यू कैन सी a unique book with 500 drawings on environmental education, a must for school students for tackling real environmental issues. और इसका फ्री एक्सेस है. अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो व्यू द बुक एंड डाउनलोड द बुक, ये 2 लिंक्स आती है यहाँ पे. तो मैंने इसको ओपन किया. सी द कंटेंट्स ऑफ द बुक. ओके, दीज आर द कंटेंट्स. उसके बाद में एक बहुत अच्छा डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है फॉर चिल्ड्रन, दैट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी.
बहुत अच्छा इसका होम पेज है और बहुत यूजर फ्रेंडली है बिकॉज इट इज फॉर चिल्ड्रन। रीड द बुक्स को आप क्लिक किए तो आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एज ग्रुप, देन साइज ऑफ द बुक, देन कैरेक्टर्स और कवर कलर्स। अगर बच्चा कहता है मुझे आज रेड कलर का ही कवर का किताब पढ़ना है, तो ऐसे ऑप्शंस भी उन्होंने दिए हैं। सी दिस इज वन ऑफ द बुक आई हैव डाउनलोडेड, एलिंडा हु डांस्ड इन द स्काई। इसको रीड दिस बुक को क्लिक करेंगे तो बुक ओपन होता है एंड यू कैन सी इन दिस वे वो बच्चा पढ़ते जाता है ऑनलाइन बुक को। नाउ देर आर सम साइट्स लाइक स्टोरी प्लेस। ये जो साइट है ये इंग्लिश और स्पेनिश में अवेलेबल है और इसमें बच्चों को पूरे एनिमेशंस का यूज करते हुए, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ये सब का यूज करते हुए, उन्होंने मल्टीमीडिया यूज करते हुए बच्चों को स्टोरी बताई जाती है, राइट। अगेन कमिंग टू आवर एकेडमिक्स, दैट इज प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग इज देयर। अगर आपको कुछ फॉरेन पब्लिशर्स की किताबें चाहिए तो यू कैन ट्राई फॉर दिस प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग्स। यहाँ पे भी देर आर ओवर 20,000 फ्री बुक्स इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आप ढूंढ सकते हैं। देर इज लिब्रीवोक्स, दैट इज ऑडियो बुक्स का फ्री पब्लिक डोमेन है, आप इसको देख सकते हो। एंड इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से ब्राउजिंग ऑप्शंस दिए हैं, टाइटल के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हो, लैंग्वेज का एक्सेस भी चेक कर सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल डाउन किया तो हिंदी बुक्स इज ऑल्सो देयर, देर आर 5 बुक्स दे हैव कंप्लीटेड, इट इज इन प्रोग्रेस एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट। और ये मराठी आप देख सकते हो, मराठी का एक बुक था, मेरा क्यूरियोसिटी था कि क्या है देखना चाहिए, तो ये मिला, मानवी अधिकाराचा जागतिक जाहीरनामा, राइट। एडवांस सर्च का ऑप्शन भी इसमें है, आप एडवांस सर्च भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, now friends, I am again coming to InflibNet, contribution of InflibNet in this open access movement. You can see there are some open access initiatives of InflibNet also, that is IR at InflibNet, that is the institutional repository of InflibNet itself. InflibNet काफी कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल लेवल की जो है ऑर्गेनाइज करती है, तो उसमें के पूरे पेपर्स जो है आपको यहाँ से मिलेंगे। देन शोधगंगा एंड शोधगंगोत्री, these are also 2 open access initiatives of InflibNet. Then EPG Pathshala is there, Vidwan database is there, and Vidyamitra is also there. Some more projects are there. Now, see, all of you know Shodha Sindhu. This is the page of Shodha Sindhu, and under that you will get some databases, access to some databases. This portal, and the access to this portal is available with university libraries, and you can see these are all the database, and Web of Science you are also getting through this Shodha Sindhu. Okay, these are full text resources you can see, and there are library for library and information science, and there are 2 projects, project मुसे एंड टेलर एंड फ्रांसिस का है। देन शोध शुद्धि भी एक है जो कि प्लेजरिज्म में मैंने दिखाई थी। उसके बाद में आप देख सकते हो एनलिस्ट इज फॉर कॉलेजेस। देखिए हर कॉलेज में एनलिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, इट इज अंडर यूटिलाइज्ड, राइट। देन ये इन्फ्लिबनेट की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आप जो देख रहे हो, और इट इज सर्चेबल। ओके, जैसे दिस इज द सर्च पेज, तो मैंने उसमें डिजिटल लाइब्रेरी एज अ फिल्टर करके सिलेक्ट किया, एंड आई रिसीव्ड दिस मेनी आर्टिकल्स ऑन digital library. Okay, so these articles are accessible in full text. This is the full text version. Okay, Vidwan database is also there. I have also told you in my previous lectures about this Vidwan database, that is the experts database. Okay, then Vidyamitra is also an integrated e-content portal. This is also under the National Mission on Education through ICT, that is NME ICT.
ओके एंड यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल्स मिलते हैं, एक्सपर्ट नोट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ई बुक्स मिलते हैं एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स गिवन। जैसे सोशल साइंसेस पे क्लिक करेंगे आप तो सोशल साइंसेस के बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे एंड यू कैन गो ऑन सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ई पोर्टल दैट इज विद्यामित्रा। ओके सी दिस इज एडवांस सर्च ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो advanced search option. Then Shodhaganga is there. You all are aware about this Shodhaganga. I will not go into the detail of Shodhaganga. See, these are the top 10 universities which are contributing to the Shodhaganga portal. You can see one thing I would like to specifically tell over here. See, I am doing one search in Shodhaganga. Okay. See, I have given the word Buddhism. Okay. And the result is 166 theses on Buddhism are accessible through Shodhaganga. ये जो फिगर है 166 उसको आप प्लीज अपने दिमाग में रखिए क्योंकि आगे उसका यूज होगा 166. See, when you click on any one of this is the bibliographic information given and see the whole thesis appear like this, right? Now this is one of the thesis you can see and Shodhaganga 3 gives you research in progress, that means synopsis of your research, synopsis of your जो आरआरसी में पास हो जाता है आपका सिनॉप्सिस, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप ये चीज को ध्यान मतलब ये चीज को लोकेट कर पाएंगे कि कोई और यूनिवर्सिटी में रिलेटेड रिसर्च चल रहा है या नहीं। ओके नाउ यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द सिनॉप्सिस ऑन बुद्धिज्म एंड आप देख सकते हो ये पूरा आपको यहाँ पे मिल रहा है। नाउ यू कैन सर्च थ्रू दिस लाइक दैट एंड आप पूरे जो एडवांस सर्चेस का भी जो ये है शोधगंगा में उसका भी इस्तेमाल करके प्रिसाइज सर्चेस कर सकते हैं। ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज NDLTD, that is Network Digital Library of Thesis and Dissertations. Okay, यहाँ पे आप देखेंगे there is one link that is thesis resources. When you click on this thesis resources, see here you will get Shodhaganga. That is Shodhaganga is the National Digital Repository of Electronic Thesis and Dissertations for India. वैसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रोव है, बांग्लादेश के लिए ये है, उसके बाद में कनाडा के लिए थीसिस कनाडा है, यूरोप का डार्ट है। तो ये सब जो कंट्रीज है इसको आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे USA UK भी आपको मिलेगा। तो ये पूरे जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरीज है थीसिस और डिसर्टेशंस की, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक ग्लोबल सर्च का ऑप्शन जो है वो NDLTD आपको प्रदान करती है। See, when you click on this global ETD search, you will get these many electronic thesis and dissertations throughout the world. यहाँ पे मैंने सेम कीवर्ड बुद्धिज्म यूज किया एंड नाउ सी द रिजल्ट्स। देखिए I received 3121 thesis for Buddhism. देखिए अगर आप केवल शोधगंगा तक ही सर्च करते हैं तो आपका सर्च लिमिटेड हो जाएगा, राइट? इंडिया के लेवल पे ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप NDLTD को भी सर्च करते हैं तो आपका स्कोप जो है वो बहुत बढ़ जाता है और आपको इस प्रकार के ट्रेंड्स भी मिलते हैं। जैसे चाइनीज लैंग्वेज में सबसे ज्यादा थीसिस है, मीन्स चाइना में बुद्धिज्म पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, राइट? मॅडम आवाज डिस्कनेक्ट झाला की मॅडम? लैंग्वेजेस मुझे तो नहीं आती लेकिन इंग्लिश के तो मैं पढ़ सकती हूँ ना, से कोई भी देंगे। दिस इज वन मोर बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका, आप देख सकते हो 443 पेजेस का थीसिस है। तो इस प्रकार से यू कैन सर्च एंड गेट द थिंग्स। अभी देखिए जैसे इनफ्लिपनेट का ही एक और प्रयास है दैट इज इनकैट।
मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उनके कैटलॉग्स को एक यूनियन डेटाबेस उसका बनाना, ठीक है। दूसरा है OCLC, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्ल्ड कैट बनाया है। और एक नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया भी है, जो जर्नल्स का एक यूनियन कैटलॉग है। तो दिस इज INCAT, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज INCAT, and you can search the book database, then thesis database also there, serials database is also there, and आप यहाँ पे इस प्रकार से कौन से लाइब्रेरी में क्या क्या कलेक्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। दिस इज द पेज ऑफ वर्ल्ड कैट, और ये उनके पूरे प्रोडक्ट्स है। तो ये वर्ल्ड कैट जो है उसमें केवल बुक्स, जर्नल्स और बाकी डिजिटल ऑडियोज, देन वीडियोज, देन इवन म्यूजियम के कलेक्शंस भी जो है उनको भी उन्होंने दिया है इसमें, राइट। देन दिस इज नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, आप इसको भी देख सकते हो। टोटल 45,632 जर्नल्स को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, ओके। तो कौन सा कोई जर्नल आपको चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप जो लाइब्रेरी में है वहां से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस आप उनको ईमेल भेज के कर सकते हो, ले सकते हो। Now I am coming to the concept of open courseware. Okay, open courseware का मतलब क्या होता है? open courseware का मतलब होता है, see, this is one course, उसका ये सिलेबस है और उसका ये लर्निंग मटेरियल है। दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ OCW, मतलब सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट क्रिएशन, ई कंटेंट क्रिएशन, ओके। अभी इसकी शुरुआत जो हुई थी वो MIT यूनिवर्सिटी में हुई थी, और उन्होंने उनके 2200 से भी ज्यादा कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन किए हुए हैं, ओके। और ये सारे उनके कोर्सेस है बाय डिपार्टमेंट, यू कैन सी ओवर हियर, ओके। और जैसे स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस और ग्रेजुएट कोर्सेस, तो इस प्रकार से उन्होंने लिंक्स दिए हैं। जैसे दीज आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, आप देख सकते हो। उसके बाद में उसके लेक्चर नोट्स, उनके एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए उसके लेक्चर नोट्स, इस प्रकार से आपको यहाँ से कुछ कोर्स वेयर मिलता है, ओके। जैसे ये जो है टीचिंग नोट्स है, PDF में आप देख सकते हो इसको इस प्रकार से, ओके। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है यहाँ पर भी। कुछ ग्रेजुएट कोर्सेस भी है, जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस, इसको आप क्लिक करेंगे और ये कोर्सेज जो है उसके अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। और अगर आप कोई कोर्स में इंटरेस्ट हो, जैसे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस टू रिसर्च, तो ऐसे कोई अच्छे अच्छे कोर्सेस है, तो आप उसका टाइम टेबल देख के आप खुद भी उसके लिए एनरोल हो सकते हो। कोई थोड़ा फीस है उनकी, वो फीस पे करके यू कैन एनरोल योर सेल्फ ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड। देखिए ये एग्जाम्स एंड सोल्यूशन, असाइनमेंट्स एंड सोल्यूशन, लेक्चर नोट्स, ऐसा पूरा इन्होंने दिया है यहाँ पे, राइट। इस प्रकार से उनके ये कुछ हिस्ट्री के आप देख सकते हो, हाउ टू स्टेज अ रिवॉल्यूशन, ओके। Then you can see there is one more initiative of 7 old IITs and IISc, that is NPTEL, यानी उन्होंने इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस है उसके ऊपर पूरे उनके एक्सपर्ट्स द्वारा ये पर्टिकुलर पोर्टल बनाया है बच्चों के लिए। और ये पोर्टल जो है, जिनको IIT में एडमिशन नहीं मिलती है, वो लोग भी IIT के एक्सपर्ट्स का जो एक्सपर्टीज है वो इस पोर्टल के द्वारा ले सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे इट इज सर्चेबल, इट इज अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, इसमें वीडियो कोर्सेस है और वेब कोर्सेस है, ये दो चीजें हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। तो ये जो है ये IIT के एक्सपर्ट है, जिनका यहाँ पे आपको लेक्चर सुनने मिलेगा। बाय इंस्टीट्यूशन भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड देखिए इस प्रकार से आप
वेब टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो लेक्चर नोट्स के तरह. So this is a very good portal for engineering students and teachers. And eGynacosh is the portal for IGNOU. IGNOU का पूरा जो ई कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलता है IGNOU. और यहाँ पे देखिए यहाँ से जैसे लेवल क्या है कोर्स का, ग्रेजुएट लेवल है, डिप्लोमा लेवल है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सर्चिंग मिलता है. जैसे मैंने लाइब्रेरी साइंस का एक कोर्स यहाँ से लिया था, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. तो उसमें जैसे ये इसको मैंने क्लिक किया तो इसके बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आ गए और आप यहाँ पे देखेंगे, इसको व्यू और ओपन करूंगी मैं तो ये वीडियो लेक्चर मुझे मिलता है. तो इस प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में जाके आप सर्च कर सकते हो. सी दिस इज द लेवल, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, मास्टर्स डिग्री. तो इस प्रकार से यू कैन सर्च, ब्राउज एंड गेट द थिंग्स डन. ये देखिए यहाँ पे आपको उनके जो बुक्स रहते हैं वो मिल गए हैं, है ना. इसके बाद में एक और इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का, और उन्होंने क्लास 1 से लेकर 12 तक की सभी टेक्स्ट बुक्स जो है वो उन्होंने पूरी ऑनलाइन कर दी है. और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द बुक टाइटल. ये देने से आपको किताब मिल जाती है. यू कैन सी दिस इज जीव विज्ञान. ओके, इसमें अगर हम छठवां चैप्टर को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम का ये बायोलॉजी का बुक जो है वो ओपन हो रहा है. सी फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इनिशियल स्टेजेस में बने थे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मर्ज हो गए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे ये. जैसे विद्या वाहिनी करके एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें रजिस्ट्रेशन था लेकिन इट वाज फ्री रजिस्ट्रेशन. और उन्होंने यहाँ पे जैसे एजुकेशनल रिसोर्सेज दिए थे शिक्षा और विजन नेट, ये 2 लिंक में. तो शिक्षा में उन्होंने क्या किया था कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई का जो सिलेबस था तो उसके लिए मटेरियल बनाए थे उन्होंने. दे हैड प्रिपेयर्ड द मटेरियल फॉर दिस. ओके, जैसे यहाँ पे मैं अगर फिजिक्स को क्लिक करती हूँ तो फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं क्लास 9 के, और इसको क्लिक करती हूँ तो उन्होंने इस प्रकार से दिया था कि 1 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या है. 2 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या है. तो इस प्रकार से उन्होंने स्टडी मटेरियल बनाया था. और विजन नेट करके एक उनका और एक पार्ट था, उसमें भी सीबीएसई के लिए ही उन्होंने बनाया था 9 से लेके 12 तक. तो देखिए सीबीएसई क्लास 11 बायोलॉजी, तो इसमें आप देखेंगे कि ये सब यहाँ पे उन्होंने ये दिए हुए टॉपिक्स दिए हुए और ये नोट्स है. और इसमें उन्होंने एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बना के दिए थे, जैसे इस प्रकार से यू कैन सी. ये बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन से, और ये प्रेजेंटेशंस टीचर भी अपने क्लासरूम में यूज कर सकता था. Then I am coming to a very important project that is EPG पाठशाला. It is under OCW. अभी आप देखेंगे कि EPG पाठशाला में भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के. जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ साइंसेस को क्लिक किया तो इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फूड न्यूट्रिशन वगैरह आए. फूड न्यूट्रिशन को मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द पेपर, सिलेक्ट द मॉड्यूल है. सिलेक्ट द पेपर को मैंने फूड साइंस सिलेक्ट किया, पेपर 1, और फिर उसमें से मैंने कोई भी एक लिंक यहाँ से क्लिक की तो उसके क्वाड्रेंट्स आते हैं, और क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आपको लर्निंग मटेरियल मिलता है. जैसे ई टेक्स्ट है तो आपको नोट्स मिलेंगे, सेल्फ असेसमेंट है तो आपको वीडियो मिलेगा, राइट. अभी देखिए ये वीडियो शुरू हो गया सेल्फ लर्निंग में, आप देखेंगे यहाँ पे. तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये टीम है जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, और ये टीचर है जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रही है. यू कैन सी दिस इज द लेक्चर ऑनलाइन. दीज आर इंटरनल स्लाइड्स. ओके, उसके बाद में स्वयं के बारे में आपको डॉक्टर रेखा शर्मा मैम ने, प्रीति मैडम ने काफी बताया होगा.
तो स्वयं जो है वो मुक बेस्ड कोर्सेज चलाती है और बच्चे इसमें से कोई भी कोर्स लेके क्रेडिट कमा के ला सकता है, जो सीबीसीएस फॉर्मेट है उसमें। देखिए, ये सब चीजें जो है यूजीसी ने भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। यूजीसी के में वेबसाइट में आपको एक लिंक मिलेगी, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो उन्होंने शुरुआत की थी ई कंटेंट डेवलपमेंट की, और उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी की संकल्पना भी लाई थी, राइट? ई कंटेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था उनका, जैसे दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है? तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, और यहाँ पे एक टीचर है, उसका वीडियो है जो आपको समझा रहा है। ऐसे छोटे छोटे, जैसे देखिए ये 1 मिनट 41 सेकेंड का वीडियो है, तो ऐसे छोटे 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 लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। और इसको मैंने उस वक्त देखा था 2009 में। तो मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला था कि क्या हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में नहीं कर सकते। तो मैंने एक प्रोजेक्ट यूजीसी को दिया था, क्रिएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बेस्ड ऑन मॉडल करिकुलम, यूजीसी मॉडल करिकुलम। तो मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, और मुझे उस वक्त 2009 में 7,63,000 रुपीज यूजीसी ने फंड किए थे। और ये ये जो सीईसी है, तो इसमें देखिए इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज सर्च भी मिलता था, ये जैसे मनी प्लांट है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने ये पोर्टल बना के यूजीसी को हैंड ओवर किया था। मैंने लाइब्रेरी साइंस के जैसे मल्टीमीडिया लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाए थे, क्विजेस बनाए थे, वीडियो लेक्चर्स बनाए थे। एक्चुअली उस वक्त जो मेरा प्रोजेक्ट जब चल रहा था, तब डिपार्टमेंट में जो भी कोई रिसोर्स पर्सन आता था किसी भी काम से, तो उनका डिनर मैं मेरे घर में रखती थी और उनसे एक वीडियो लेक्चर बनवा के लेती थी। मैंने पूरा जो सेटअप था मेरे घर में ही बना के रखा था। सो इट वाज ग्रेट सेटिस्फेक्शन जब मैंने ये पोर्टल बना के उनको हैंड ओवर किया। उसके बाद में काफी वीडियोस मैंने उसके यूट्यूब में अपलोड भी किए बच्चों के लिए, ठीक है? ये भी हमने मूडल में बनाया था, और मूडल में ही क्विज इस प्रकार से बना के दी थी। और जब एक क्विज, जब मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मैंने आईसीएसएसआर को दूसरा प्रोजेक्ट भी डाला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक बनाने का। तो उसके लिए भी मुझे 3.5 लाख रुपए आईसीएसएसआर ने दिए थे। और मैंने उनको नेट के लाइब्रेरी साइंस के जो पेपर रहते हैं उसके लिए क्विजेस बना के दिए थे, ओके? और ये सब जो है ये लेक्चर नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, यू कैन सी ओवर हियर, बेस्ड ऑन सिलेबस। ये मेरी गुरु है डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम, उनका भी एक वीडियो जो है हमने शूट किए थे, नॉलेज मैनेजमेंट इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, ओपन एक्सेस इज जस्ट लाइक एन अलादीन का चिराग फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? जितना घिसते जाओ आपको और डीप में इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। Okay, now I am coming to a very important point के ठीक है, लोगों ने जो ओपन एक्सेस लिटरेचर अवेलेबल करके दिया है उसको हमने यूज करना है, ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट? लेकिन हम हमारा जो रिसर्च है उसको कैसे क्या अपलोड करें, राइट? ताकि बहुत ज्यादा लोग उसे पढ़े, उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़े, और तीसरी चीज मुझे ज्यादा से ज्यादा साइटेशंस आए, राइट? तो ये मेरा उद्देश्य है। अभी देखिए, जो आपका पेपर होता है, पब्लिश्ड पेपर, उसको आप अगर ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज में सबमिट करते हो तो वो सबको दिखेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हो गया तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, ओनली टू द सब्सक्राइबर्स ऑफ दोज जर्नल्स, राइट? इसीलिए ये आर्काइविंग ऑफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस ओपन एक्सेस मूवमेंट, ओके? सो ये आर्काइविंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, सेल्फ आर्काइविंग होता है,
तो सेल्फ आर्काइविंग कैसे करते हैं? सेल्फ आर्काइविंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप खुद का ब्लॉग बनाओ, खुद की वेबसाइट बनाओ, उसमें पेपर डालो, ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो उसमें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाओ, उसमें आपके फैकल्टी के पूरे पेपर्स, थीसिस, बुक्स, बुक चैप्टर्स वो अपलोड कीजिए। और तीसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, वो होता है डिसिप्लिनरी आर्काइव्स। देखिए, इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स मीन्स उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तक वो मर्यादित हो जाता है, कोई बाहर का आके वो रिपोजिटरी में अपना पेपर नहीं डालता है। बट देर आर सम जनरल डिसिप्लिनरी आर्काइव्स आर अवेलेबल ऑन द वेब, और उसमें अगर आप आपका पब्लिश्ड पेपर आर्काइव करते हो तो आपको काफी सारी सुविधा मिलती है और आपका रिसर्च जो है वो वर्ल्ड वाइड जाता है। See friends, there are some general repositories, some academic, social networking sites also, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, कहाँ आर्काइव करना, एक तो आपकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है वहां पे करना। दूसरा डिसिप्लिनरी आर्काइव्स है, आपके विषय से रिलेटेड काफी आर्काइव्स ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें आप आपका पेपर अपलोड कीजिए। तीसरा है जनरल रिपोजिटरीज है, जैसे फिक्सशेयर, ओएसएफ है। और चौथा है एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक रिसर्चगेट एंड academia.edu। अभी देखिए, दिस इज फिक्सशेयर, यहाँ पे देखिए स्टोर, शेयर, डिस्कवर, रिसर्च, ओके। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने सर्च करना चाहा सेल्फ आर्काइविंग पे, कितने पेपर्स इसमें हैं फिक्सशेयर पे, तो देखिए बहुत सारे हैं सेल्फ आर्काइविंग पे पेपर्स। ऐसे आप आपके पेपर भी इसमें डाल देंगे तो लोग सर्च करेंगे उसको, राइट। ये है OSF होम, दिस इज ऑल्सो अ फ्री ओपन प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट योर रिसर्च एंड एनेबल कोलैबोरेशन, ओके। देन रिसर्च गेट इज देयर, आप काफी लोग रिसर्च गेट में मेंबर होंगे। देन अकेडमिया इज देयर। देखिए, academia.edu में अगर आप साइन अप करते हो या आपका पेपर देते हो तो आपको देखिए इतने सारे एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स से कांटेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो आपके रिसर्च की विजिबिलिटी बढ़ती है ओपन एक्सेस की वजह से। नाउ सेल्फ आर्काइविंग, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये सेल्फ आर्काइविंग का मतलब है द एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग अ फ्री कॉपी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट or more specifically on the World Wide Web in order to provide open access to it. Okay. This term usually refers to self-archiving of peer-reviewed journal research papers and conference articles, as well as thesis and book chapters deposited in the author's institutional repository or open archives for the purpose of maximizing its accessibility, its uses, and its citation impact. Okay. अब आप कब आर्काइव कर सकते हो? आपका पेपर जो है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज होती है जो आप लिखते हो खुद होके, दैट इज द मैन्युस्क्रिप्ट, इट इज प्री प्रिंट स्टेज। फिर वो पेपर जब एडिटोरियल बोर्ड को जाता है, एडिटोरियल बोर्ड उसको रिव्यूअर्स के पास में भेजते हैं, एक्सपर्ट्स के पास में। एक्सपर्ट्स उसको रिव्यू करते हैं, वो आपको सजेशंस देते हैं, वो आप सजेशंस इम्प्लीमेंट करते हो, फिर से एडिटर को भेजते हो, फिर से एडिटर रिव्यूअर को भेजता है, और रिव्यूअर सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो एक्सेप्ट हो जाता है फॉर पब्लिकेशन, दैट इज द पोस्ट प्रिंट, दैट इज मॉडिफाइड पेपर। और फिर पब्लिशर उसको कैमरा रेडी कॉपी बनाता है उसके फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिशर्स PDF वर्जन, जिसको हम रीप्रिंट कहते थे, प्रिंट वर्ल्ड में हम उसको रीप्रिंट कहते थे। तो आपका पेपर 3 स्टेजेस से गुजरता है, प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट एंड रीप्रिंट, ओके। नाउ प्री प्रिंट स्टेज पे भी आप आर्काइव कर सकते हो। प्री प्रिंट स्टेज पे अगर आपने आर्काइव किया तो आपको लोगों की तरफ से सजेशंस आएंगे, फीडबैक आएगा, और वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज इसमें सोचने की बात ये है कि मतलब कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो प्री प्रिंट अगर आप करते हो तो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर रहना है, अगर आपने प्री प्रिंट कहीं पे अपलोड किया है रिपोजिटरी में, तो आप वैसे पब्लिशर को सीधा सीधा क्लियरली बता दीजिए। अगर पोस्ट प्रिंट है तो बहुत से जो पब्लिशर्स है वो पोस्ट प्रिंट को अपलोड करने के लिए देते हैं परमिशन, नहीं देते ऐसा नहीं,
ठीक है ना, बट इट इज द एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो होता है। उस स्टेज पे भी आप सेल्फ आर्काइव कर सकते हो। अब अभी पब्लिश हो गया पेपर आपका, ऑलरेडी आ गया जर्नल में, ओके, द स्टेटस इज नाउ ऑलरेडी पब्लिश्ड। तो वो पब्लिश्ड वर्जन भी आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड में से निकाल के ओपन आर्काइव में डाल सकते हो, राइट। अभी हम इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ओपन एक्सेस के दो रूट होते हैं, एक होता है ग्रीन रोड और दूसरा होता है गोल्ड रोड, ठीक है। ग्रीन रोड का मतलब क्या होता है कि जो ओपन एक्सेस जर्नल्स है उसी में पब्लिश करो, ताकि ऑटोमेटिकली आपका पेपर वर्ल्ड वाइड विजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स आपसे आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस डिमांड करते हैं, राइट। तो वो एक आपको यहाँ पे चीज होती है। और ये जो गोल्ड रूट होता है, गोल्ड रूट का मतलब क्या है कि जो रेप्यूटेड पब्लिशर्स के सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स जो है उसमें आपका पेपर पब्लिश कीजिए पहले, और फिर पब्लिश होने के बाद में अपना पेपर उठा के आप ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में डालिए, ताकि आपको दोनों एडवांटेज मिलेंगे। एक तो आपको रेप्यूटेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड पब्लिशर का भी एडवांटेज मिलेगा, और दूसरा आपने ओपन एक्सेस में रिपोजिटरी में अपलोड किया तो उसका विजिबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये दो चीजें मैंने आपको कहा। और ग्रीन ओपन एक्सेस जर्नल्स जो होते हैं तो वो सेल्फ आर्काइव, कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो एम्बार्गो पीरियड इम्प्लीमेंट करते हैं कि पब्लिश होने के 6 महीने के बाद में आप एक काम कर आप उसको सेल्फ आर्काइव कर देते हो। तो हर एक की पॉलिसी अलग होती है, ठीक है। अभी हम और आगे जाते हैं थोड़ा। देखिए, स्कोपस और वेबसाइट का अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो देखिए स्कोपस में मोर देन 5500 जर्नल्स जो है ओपन एक्सेस जर्नल्स है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन एक्सेस जर्नल्स को भी ये दो इंडेक्सेस जो है वो इंडेक्स करती है, राइट। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ पेपर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, अगर आप देखिए मैन्युस्क्रिप्ट लिखा आपने और आपने क्या किया, उसको जर्नल को भेजे, लेकिन उसका आपने आर्काइव नहीं किया। रिव्यू हो गया, पोस्ट प्रिंट आ गया, ठीक है, वो भी आपने आर्काइव नहीं किया। फिर वो पब्लिश होके आ गया, तो आपको वो जर्नल के जितने सब्सक्राइबर्स है उतने लोग ही पढ़ रहे, राइट। यहाँ पे अभी देखिए, अभी अभी आपने आर्टिकल लिखा, ये आपका प्री प्रिंट है, वो जर्नल को दिया, हाँ, एज वेल एज यहाँ पे उसको आर्काइव भी किया, ठीक है। तो वो आर्काइव करने से क्या हो गया, आपको इतने लोग मिल गए। फिर आपने पोस्ट प्रिंट हुआ, पोस्ट प्रिंट भी आर्काइव किया, वो आर्काइव करने के बाद में आपको इतने सारे लोग और मिल गए। फिर ये जो है जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ, ये लोग तो थे ही आपके, राइट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाले। तो ये इतने सारे लोग जो है वो आपका पेपर पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस आर्काइविंग, राइट। अभी मैं आर्काइविंग के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि मैं इतना सब बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आया होगा कि व्हाट अबाउट कॉपीराइट। क्योंकि आप कॉपीराइट एग्रीमेंट लिख के देते हो पब्लिशर को, यू ट्रांसफर योर कॉपीराइट टू पब्लिशर व्हेन यू सेंड योर पेपर टू पब्लिशर। तो आपके दिमाग में यही चीज होती है कि विल द पब्लिशर कैच होल्ड मी फॉर वायलेटिंग कॉपीराइट, राइट। तो ये चीज जो आपके दिमाग में है, इसी डर की वजह से लोग आर्काइव करने के लिए पेपर देते नहीं है। देखिए, हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जब तक आप कंपलसरी नहीं करेंगे आपके फैकल्टी को, तब तक वो पेपर देने के लिए हिचकिचाते हैं वो रिपोजिटरी में ओपन एक्सेस में डालने के लिए, राइट। तो एक डर है आपके मन में, लेकिन उस डर का एक सॉल्यूशन भी है, एंड दैट इज शेरपा। शेरपा जो है वो 4 तरह की सर्विसेज देता है, शेरपा रोमियो, शेरपा जूलियट, ओपन DOAR,
ये एंड शेरपा सर्च, ये 4 सर्विसेज जो है वो शेरपा देता है। उसमें से जो शेरपा रोमियो डेटाबेस है उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड के रेप्यूटेड पब्लिशर्स जो भी है, तो वो रेप्यूटेड पब्लिशर्स का कॉपीराइट एंड आर्काइविंग पॉलिसीज को स्टडी करके ये डेटाबेस बनाया है। आप जस्ट आपके जर्नल का टाइटल या ISSN या फिर पब्लिशर का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपको उसकी जो आर्काइविंग पॉलिसी है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। इन्होंने किया क्या है तो शेरपा सर्विसेज, शेरपा रोमियो डेटाबेस ने पूरे वर्ल्ड वाइड पब्लिशर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर आर्काइविंग पॉलिसी। वो है ग्रीन, ब्लू, येलो एंड व्हाइट। पहला है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि इफ यू आर पब्लिशिंग योर पेपर इन ग्रीन जर्नल्स देन यू कैन आर्काइव प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट एज वेल एज द रीप्रिंट। ठीक है, तो आपको ग्रीन पब्लिशर्स पूरा फ्रीडम देते हैं टू आर्काइव योर रिसर्च, राइट। अगर ब्लू कैटेगरी का पब्लिशर है तो वो कहता है कि यू कैन आर्काइव पोस्ट प्रिंट, दैट इज फाइनल ड्राफ्ट आफ्टर रिफरिंग। ठीक है, और जो है रीप्रिंट पब्लिशर्स वर्जन, वो भी आपको आर्काइव करने की परमिशन देती है। मीन्स ग्रीन एंड ब्लू पब्लिशर्स आर allowing you to archive your paper in open archives। तीसरा होता है येलो। येलो कहता है कि आपका ओरिजिनल वर्क जो है ना वो प्री प्रिंट ही आप अपलोड कर सकते हो। जब से हमारा काम शुरू होता है पोस्ट प्रिंट एंड रीप्रिंट यू कैन नॉट अपलोड, मीन्स इट इज रेस्ट्रिक्टिंग योर आर्काइविंग प्रोसेस। और व्हाइट वाला जो है वो कहता है हमारे जर्नल में पेपर आपने पब्लिश किया है, नो आर्काइविंग। तो देखिए ग्रीन एंड ब्लू दे आर अलाउिंग यू टू आर्काइव द पेपर्स। अभी देखिए मैंने शेरपा रोमियो में सर्च किया नेचर पब्लिशिंग ग्रुप का, तो यहाँ पे आया दिस इज अ रोमियो येलो पब्लिशर, यानी प्री प्रिंट को वो अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट प्रिंट को भी वो अलाउ करता है लेकिन पार्शियल करता है। 6 मंथ्स का एम्बार्गो है, मतलब पब्लिश होने के 6 महीने के बाद में यू कैन आर्काइव पोस्ट प्रिंट ऑल्सो, बट यू कैन नॉट आर्काइव द पब्लिशर्स वर्जन। सो ये जो है आर्काइविंग, उसको आपका पेपर आर्काइव करने के पहले यू शुड गो टू शेरपा रोमियो डेटाबेस एंड उसमें से आप उसकी पॉलिसी चेक कर लीजिए। इफ इट इज ब्लू एंड ग्रीन देन बिंदास आप आपके पेपर को आर्काइव कर दीजिए। सी दीज आर एक्चुअली द वेरियस कैटेगरी पब्लिशर्स। ओके, जैसे स्प्रिंजर वर्लेग है जर्मनी का, तो वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑथर कैन आर्काइव प्री प्रिंट, ऑथर कैन आर्काइव पोस्ट प्रिंट, बट ऑथर कैन नॉट आर्काइव द रीप्रिंट। तो आप पोस्ट प्रिंट आप अपलोड कर सकते हो, राइट। उसके बाद में देखिए ये जो शेरपा रोमियो डेटाबेस है उसका इंक्लूजन कैसे कैसे बढ़ा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा 2004 से लेके अभी तक। और अगर आप ये कैटेगरीज के हिसाब से एनालिसिस देखते हैं तो मैक्सिमम पब्लिशर्स दे अलाउ आर्काइविंग, सी ग्रीन एंड ब्लू, तो मैक्सिमम पब्लिशर्स अलाउ आर्काइविंग एंड येलो ये 7% है, व्हाइट 18% है, राइट। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप कंट्री वाइज एनालिसिस करने जाओगे तो आपको यहाँ पे इंडिया मिलेगा। इंडिया के 124 पब्लिशर्स का एनालिसिस और आर्काइविंग पॉलिसीज रिपोर्टेड है शेरपा रोमियो डेटाबेस में। देखिए इसमें से 124 इंडिया के जो है उसमें से 55 आर ग्रीन एंड 58 इज येलो एंड ब्लू एंड येलो आर 2, व्हाइट आर 9। मतलब 124 में से ओनली 11 publishers they are not allowing self archiving, but other publishers they are allowing self archiving। देखिए पब्लिशर्स का मानना ये है कि पूरा के पूरे 10 ऑथर ने पेपर दिए तो 10 ऑथर सेल्फ आर्काइव नहीं करते, उसमें से 1 या 2 करता है। तो वो जो कंटेंट ओपन एक्सेस में जाता है तो उसके उसको रीड करके लोगों को हमारे जर्नल की क्वालिटी पता चलती है और उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ता है।
ऐसा उनका कहना था। एक्चुअली मेरे अंडर में एक पीएचडी रिसर्च वर्क हुआ था ये सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज ऑफ पब्लिशर्स पे। तो उसमें कुछ पब्लिशर्स को इंटरव्यू किया गया और उन्होंने उनको पूछा गया कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा ओपन एक्सेस है, हमारे बिजनेस पर हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, हमारे जितनी कॉपीज जानी है उतनी कॉपीज सब्सक्रिप्शन हो ही जाती है। उल्टा हमें फायदा ही होता है कि क्वालिटी लोगों को पता चलती है। उसके बाद में आप देखेंगे दिस इज एक्चुअली द लिस्ट ऑफ 124 पब्लिशर्स फ्रॉम इंडिया, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये 9 पब्लिशर्स जो है जो व्हाइट पब्लिशर्स है, इन लोगों के इसमें अगर आपका पेपर आता है तो प्लीज डोंट गो फॉर सेल्फ आर्काइविंग, राइट। ये पूरे आपको दिखा रही हूँ सब पब्लिशर्स, ओके। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये बहुत सारे पब्लिशर्स है, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, ओके। इंडिया के जैसे एक इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, वो ब्लू पब्लिशर है, राइट। फिर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ग्रीन पब्लिशर है, ओके। अभी ये जो शेरपा जूलियट है, वो शेरपा जूलियट रिसर्च फंडर्स की ओपन एक्सेस पॉलिसी क्या है वो आपको बताती है, ओके। आई वांट टू टेल यू अबाउट ओपन डीओएआर। देखिए, अगर आपने सोचा कि डिसिप्लिनरी आर्काइव में मैं अभी मेरा पेपर अपलोड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपको कहाँ से मिलेंगे ये सोर्सेस कि आपको डिसिप्लिनरी आर्काइव कौन से है, ये कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको ओपन डीओएआर से, राइट। अभी आप देखेंगे कि ये मई महीने का स्टैटिस्टिक्स है, टोटल 5352 रिपोजिटरीज आर रिपोर्टेड इन ओपन डीओएआर, राइट। अभी ये दिस इज द होम पेज ऑफ ओपन डीओएआर। आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन शेरपा रोमियो पॉलिसी चेक की, अभी ओपन डीओएआर में आप जाइए। इधर यहाँ पे ब्राउज बाय कंट्री भी है और एडवांस सर्च के ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं। अभी देखिए, ब्राउज बाय कंट्री में आप जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे इंडिया डालोगे तो इंडिया के 94 रिपोजिटरीज यहाँ पे रिपोर्टेड है इंडिया के। तो इसमें से आपको इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी नहीं लेना है, आपको लेना है डिसिप्लिनरी आर्काइव्स, राइट। आपके विषय के डिसिप्लिनरी आर्काइव्स। देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ पे इंडिया है, राइट। अभी जो टाइप्स ऑफ रिपोजिटरीज है मोर देन 5000, उसमें से इंस्टीट्यूशनल ज्यादा है लेकिन डिसिप्लिनरी 351 है। तो आपको इसमें चेक करना है कि आपके विषय का कौन सा रिपोजिटरी है, ओके। और आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो ये रिपोजिटरीज में, यू कैन सी हियर कि आप जर्नल आर्टिकल्स, थीसिस, बुक चैप्टर्स, कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप पेपर्स, रिपोर्ट्स, देन स्पेशल आइटम्स कोई भी होंगे, पेटेंट है, डेटा सेट है, लर्निंग ऑब्जेक्ट है, ये सबको आप अपलोड कर सकते हो। दिस इज सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्काइव्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसमें से आप आपका जो है, जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 145 आते हैं, तो मैं इंस्टीट्यूशनल को एक्सक्लूड करूंगी और डिसिप्लिनरी आर्काइव में मैं मेरा पेपर अपलोड करूंगी, राइट। देखिए, कंट्री एंड रीजन के ये है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी को आपको स्किप करना है क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड होती है। आप यहाँ पे एडवांस सर्च भी इस प्रकार से कर सकते हो और इसमें आपको केवल डिसिप्लिनरी आर्काइव को सिलेक्ट करना है, राइट। देखिए, मैंने जो सर्च किया वो किया डिसिप्लिनरी एंड सब्जेक्ट्स में मैंने लिया फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो दीज आर 17 डिसिप्लिनरी आर्काइव्स अवेलेबल फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इसमें आप थोड़ा सर्च कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप आपका पेपर अपलोड कर सकते हो, ओके। सी दीज आर 17 फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ओके। और ये जो है arxiv.org, ये सबसे पुराना आर्काइव है और यहाँ पे बहुत सारे बाकी लोगों ने अपलोड किए हुए उनके क्वालिटी पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, राइट। सी दिस इज arxiv, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो, इट कवर्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंसेस एंड क्वांटिटेटिव बायोलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स आप इसमें अपलोड कर सकते हो।
जैसे मैंने इसमें कोविड-19 कीवर्ड दिया, तो इतने सारे लोगों के पब्लिश्ड पेपर्स 724 पब्लिश्ड पेपर्स मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए भी ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सॉरी डिसिप्लिनरी आर्काइव्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए एक एक पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दूसरा पेपर है ना? इट इज द ओल्डेस्ट वन, ARXIV। और ARXIV में अगर मुझे पेपर अपलोड करना है तो आपको सबमिशन गाइडलाइंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर अपलोड करने के लिए रजिस्टर्ड यूजर बनना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ दूसरों के पेपर पढ़ना है तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब आपका पेपर इस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए और फिर आप ऑथर को का रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको इस लिंक से मिल जाएगा, उसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स और पासवर्ड्स वगैरह सब डाल दीजिए। वो सब होने के बाद में आपको पासवर्ड उनकी तरफ से ईमेल पे आ जाएगा, और ईमेल पे जब आता है रजिस्टर करने के बाद में, फिर वो आपको मैसेज देता है, यस आपका अकाउंट तैयार हो गया है, नाउ यू कैन स्टार्ट द न्यू सबमिशन। तो स्टार्ट द न्यू सबमिशन में जाने के बाद में ये आपको पूरे चीजें आती है, उसको भरते जाना है आपको। जस्ट बिकॉज मेरे पास में उस डोमेन का पेपर नहीं था तो मैं अपलोड नहीं कर पाई उसको, लेकिन आप फिजिक्स वाले फिर मैथमेटिक्स वाले जो भी लोग होंगे यहाँ पे, आप जरूर ये पर्टिकुलर इसमें अपलोड कीजिए, ठीक है? हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की जो रिपोजिटरी है वो ELIS है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें अगर आप मेरा नाम डालेंगे तो मेरे कुछ पेपर्स 10 पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? दीज आर ऑल द पेपर्स। अभी देखिए ये एक जो पेपर था, ओपन एक्सेस इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड सुपर पावर। तो जब मैंने ये 2006 में गुलबर्गा कॉन्फ्रेंस में आया था, ये पेपर प्रेजेंट किया गया था पेपर ये। तो ये पेपर मैंने ELIS में दिया 2006 में ही। तो एक्चुअली 2-3 दिन वो बफर में रहता है और फिर बैक एंड में जाता है, लेकिन एक आध हफ्ते के बाद में मैंने गूगल में सर्च किया ओपन एक्सेस इंडिया, तो मेरा ये पेपर फर्स्ट नंबर पे रिट्रीव होता था। यानी गूगल जो है वो इन सबको ये करती है, इंडेक्स करता है, तो उसकी विजिबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है आपके पेपर की। तो ये पेपर जब गूगल में दिखने लगा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे यूनेस्को से एक ईमेल आया कि हमने आपका ये पेपर पढ़ा है, तो हमें ऐसी इंडिया की केस स्टडी हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो मैंने वो प्रोजेक्ट के लिए केस स्टडी बनाई एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द हैंडबुक ऑफ द पब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन ओपन एक्सेस। और मेरा वो स्टडी जर्मन भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में वर्शन में आया और चाइनीज में आया। 3 इंटरनेशनल ट्रू इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मुझे इस चीज से मिले, राइट? तो ये एक्चुअली होता है एडवांटेज, और आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाता है व्हेन यू गो ऑनलाइन, राइट? अभी देखिए गूगल स्कॉलर में आपको मैंने बताया था कि ये सुविधा जो है ये सुविधा मिलती है। जैसे आपका गूगल स्कॉलर में पेपर आता है या गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है, तो बहुत सारे लोग उस पेपर को सर्च करते हैं, पढ़ते हैं एंड दे साइट यू, ओके? तो इससे आपको काफी फायदा मिलता है। जैसे ये एक मेरा पेपर है साइटेड बाय 11, है ना? तो इस प्रकार से दिस इज साइटेड बाय 9, सी दिस इज आल्सो साइटेड बाय 3। तो इस प्रकार से आपको साइटेशंस मिलना शुरू हो जाता है और नेचुरली आपका H इंडेक्स, I10 इंडेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है, ठीक है? तो यही वो पेपर था, आप देख रहे हो, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड सुपर पावर, ओके? इसके इस प्रकार से बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पेपर, तो आपका पेपर जो है वो फुल टेक्स्ट खुल जाता है, ठीक है? अभी देखिए हाँ, ये जो ओपन एक्सेस में आप पेपर डालते हो तो आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है वो आप यूज कर सकते हो। देखिए देर आर वेरियस टाइप्स लाइक CC by NC, CC by NC ND। तो उसके हर एक लाइसेंस के अलग अलग प्रिविलेजेस है। जैसे CC by है तो आपने उसको पूरा ओपन कर दिया,
मतलब anybody can read, download, print, share, distribute, reuse, build on, tweak, remix, translate, reuse commercially. यानी ये जो लाइसेंस है इसमें आप बाकी लोगों को पूरे पूरे ऑप्शंस दे देते हो. उसके बाद में सीसी बाय एनसी जो है उसमें रीयूज कमर्शियली को वो ऑफ कर देता है ऑप्शन को. सीसी बाय एनसीएनडी जो है उसमें ट्विक, रीमिक्स, ट्रांसलेट और रीयूज कमर्शियली को वो ब्लॉक कर देता है. तो ऐसे लाइसेंसिंग सिस्टम्स भी होते हैं. So friends, to conclude with, it is now the journey from reprint to e-print. Now we must go and adopt all these new technologies, right? अभी देखिए, it is rightly said by Alvin Toffler that the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. These words are very important. Learning, unlearning, and relearning. That is the message for today. Thank you so much for patient listening. Thank you. थैंक यू मैडम. फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मैडम से डिस्कस कर सकते हैं. Is there any question? Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Hello? sir. Yes, you are audible. मैम जैसे आपने बहुत सारे रिसोर्सेज ये बताए जो हमें अभी पढ़े हैं. इन रिसोर्सेज का कहीं पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि जहाँ पे हमें जिस भी टाइप का रिसोर्सेज देखना हो तो हमें वहां से कॉमनली पता लग जाए. जैसे डिजिटल लाइब्रेरी और जितने भी आपने ई शोध गंगा वगैरह जितने भी आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बताए, कहीं एक कनेक्टिव पोर्टल है जहां से हमें इन सभी के बारे में एक साथ जहां भी यूजेस हो हमारे उसके हिसाब से हमें पता लग जाए. देखिए सर, एनडीएल जो है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, वो अभी प्रोसेस में है, राइट. वो अभी वन लाइब्रेरी फॉर इंडिया कर रहा है, लेकिन ऐसे एनडीएलटीडी है जो पूरे थीसिस को इकट्ठा कर रहा है. लेकिन ऐसा यूनिफॉर्मली पूरा लिटरेचर आपको एक जगह दे दे, ई लिटरेचर, तो ऐसा तो केवल डब्ल्यू ही है. हाँ, www है, वहीं से मिलेगा आपको. पूरा एक जगह आपको कहीं से नहीं मिलेगा सर आज की तारीख में. लिटरेचर नहीं मैम, अगर इनके वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह भी कहीं पे पेस्टेड हो, कोई एक ऐसा पोर्टल हो जैसे आपने बताया कि वो एक जो आर्काइव वाला पोर्टल था जिसमें उन्होंने सारा डेटाबेस को आर्काइव किया और उसको. जैसे DOAR है, उसमें से आपको सब आर्काइव्स के URLs मिल जाएंगे. ठीक हाँ है. जी. फिर डिजिटल ऐसी. लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स के भी बहुत सारे लिंक्स आपको एक साथ में मिल जाएंगे, है ना. तो लिंक्स तो मिल जाएंगे सर आपको, उसमें कोई कोई इशू नहीं. प्रॉब्लेम नाही. DOAR आहे, DOH आहे. मॅडम हा. त्यांचं म्हणणं असं आहे की ह्या सगळ्या लिंक एका याच्यावर आलं पाहिजे. तर जसे आम्ही आमच्या युनिव्हर्सिटीची ई रिसोर्स पोर्टल Website. बनवलेलं आहे. हा. And we have given all the link in that portal only. So Yes. बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भी बनाया है. तो आपको अगर लगता है तो कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ ई रिसोर्स का पोर्टल होगा. जैसे हमारा नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का है, तो हमने ये सभी क्लासिफाइड करके दिया है. जैसे मैडम ने दिया है अभी, कंसोर्शिया अलग, जर्नल्स अलग, डिजिटल लाइब्रेरी, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, एवरीथिंग इज देयर. तो आपको सभी लिंक क्लासिफाइड मिल जाएगी. एंड सपोज यू हैव टू क्लिक देयर, तो इमीडिएटली द होम पेज विल बी गेट यू. तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी का अगर आप होम पेज देखेंगे उसमें भी कंटेंट की लिंक्स दिए हुए हैं, लेकिन कोई भी पोर्टल ऐसा नहीं है कि जो पूरी लिंक्स एक जगह देगा. नोबडी कैन क्लेम हमारे इसमें पूरा वर्ल्ड का दिया है करके ना. उसके लिए एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा. These are the facilities provided by librarians actually. जैसे आपकी जो वेबसाइट है वो काफी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि वो हम भी कंसल्ट करते हैं बहुत बार, है ना.
तो सभी बरोबर. यूनिवर्सिटीज की नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ने अच्छा पे दिया है. लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि नोबडी कैन क्लेम कि हमने पूरा एग्जॉस्टिव सब दिया है. नोबडी. रिप्रेजेंटेटिव आप लिंक्स दे सकते हो, लेकिन पूरा नहीं दे सकते हो ना पूरे वर्ल्ड का. हम्म. ऐसा है. रिसर्च पर्पज एंड टीचिंग पर्पज वी कैन गिव द ओनली. या दैट मच. जैसे मैंने आज जितने रिसोर्सेस बताए उसकी पूरी लिंक आप अगर आपके वेबसाइट में दे देंगे तो उतना सफिशिएंट है ना. इट्स सफिशियंट फॉर दैट. हाँ. फिर आमच्याकडे ई आम्ही दिलाय ते. न्यूज़पेपर की भी लिंक्स मांगेंगे लोग. ई न्यूज पेपर्स, जो ई पेपर्स होते हैं, ई न्यूज पेपर्स, तो उसकी भी लिंक्स मांगेंगे आगे चल के, है ना. मैन्युस्क्रिप्ट्स की भी लिंक्स मांगेंगे. इतना सारा क्योंकि थोड़ी एक साइट में दे सकते मैडम, है ना? वही तो मैं बोल रही हूँ ना. थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव एवरीबडी कैन गिव. और दिया भी है वो काफी यूनिवर्सिटीज ने. इवन नागपुर यूनिवर्सिटी ने भी ये कंटेंट का दिया है, बट वो लिमिटेड है ना. एनी मोर क्वेश्चन? आय थिंक क्वेश्चन्स नाही आहेत मॅम. नो क्वेश्चंस? मैम क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चन, काफी सारे रह सकते हैं, बट कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारा आपने बताया है, इतना सारी चीजें बताई हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को कि जी. इतना सारा सीखा है. ओके मॅम, थँक्यू सो मच मॅम फॉर मॅडम युअर. मॅडम हे जे सब्जेक्टिव्ह जे डिसिप्लिनरी आर्काइव्ह आहेत, हाँ. तर याच्यातलं मटेरियल जे आहे ना खूप असं हा. थोडं ओल्ड दिसायला लागतं, म्हणजे करंट दिसत नाही. तर तो एक थोडा त्याचा लॅकुना मला असं जाणवतो. अच्छा. जसं लायब्ररी सायन्सचा ELIS किंवा ARXIV हे जे आहेत डिसिप्लिनर, तर यात असं थोडं ओल्ड म्हणजे 5 वर्ष आधीचा किंवा असं करंट असं दिसत नाही. तो थोडा तो एक वाटतो त्याच्यात. ऍक्च्युली सेल्फ आर्काइविंगचं जे कॉन्सेप्ट आहे ना, ते अजून लोकांना माहित नाहीये. इव्हन लायब्रेरियन्सना त्याच्यामुळे. पण पुष्कळ लायब्रेरियन्सना नाही माहित आहे सेल्फ आर्काइविंग म्हणजे काय. त्याच्यामुळे कसं होऊन राहिलं की, आणि दुसरी गोष्ट ते घाबरतात ते करायला. कारण का की आपलं जे पब्लिश्ड पेपर आहे तो ओपन ऍक्सेस मध्ये टाकायला म्हणजे खूप धैर्य लागतं ऍक्च्युली. कारण कशाची असते भीती, प्लॅजरिझमची पण असते त्यांना. दुसरी गोष्ट क्वालिटीची पण भीती असते कधी कधी, की दे आर नॉट मोर कॉन्फिडंट टू अपलोड द पेपर्स. मग भीती ही पण वाटते की का कुणी त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आणतील ओपन ऍक्सेस मध्ये टाकून. तर असे व्हरायटी ऑफ प्रॉब्लेम्स आर देअर, सो पीपल आर नॉट सेल्फ आर्काइविंग. पण तुम्ही बाकीचे सायन्सचे पहा, तुम्ही ARXIV वगैरे पहा. AELIS तर मी नाही म्हणत आहे, पण बाकीचे ARXIV सायन्स वाल्यांचे जे डिसिप्लिनरी आर्काइव्ह आहेत ना, तर त्याच्यामध्ये चांगलं मटेरियल मिळतं तुम्हाला. जसं मी तुम्हाला कोविड इतका सिरियस इश्यू होता कोविडचा, तरी मोर दॅन 700 पेपर्स त्याच्यावरनं निघाले तुमचे. म्हणजे कोविडवरती आता COVID-19 वरती आता एका वर्षातच लिटरेचर प्रोड्यूस झालेलं आहे ना, परंतु त्याचे केवळ COVID-19चे मोर दॅन 700 पेपर तुम्हाला मिळालेत, रिसेंट वन, है ना. तर काही आर्काइव्ह जे आहेत ते फ्लरिश्ड आहेत. ओके मॅम. सो छान झालं मॅडम. थँक्यू सो मच मॅम Congratulations. फॉर सच ए इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होतं मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आपण नेक्स्ट सेशन आपण 12:30ला चालू करू मॅडम. चालेल. ते आपलं PBS आणि API वाला राहील ना, हा कॅश वाला कॅश वाला. ठीक आहे मॅम, थँक्यू मॅडम. मी आता मीटिंग एंड करते, मग 5-10 मिनिटांनी परत स्टार्ट करते. ओके. ओके Thank मॅम, you. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू.